हाय गाइस। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 के आज की लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टडी करते हैं सेक्शन 21 से लेके 30 तक कि सेक्शन 21 से लेके 30 तक में क्या व्यवस्था की गई है इंडियन पेनल कोड के तहत। तो आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड जो स्पष्टीकरण करता है पब्लिक सर्वेंट की, यानी कि पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 बताया गया है। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन hereinafter following, namely, for every commissioned officer in the military, naval or air forces of India, every judge, including any person empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of a person and any adjudicatory function. Next, every officer of a court of justice, including a liquidator, receiver, or commissioner whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, to make, authenticate, or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person is specially authorized by court of justice to perform any of such duties. Next, every juryman, assessor, or member of a panchayat assisting a court of justice or public servant. Next, every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred by decision or report of any court of justice or by any other competent public authority. Seventh, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement. Eighth, every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety, or convenience. Ninth, every officer whose duty it as such officer to take, receive, or keep, or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment, or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate, or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. एंड नेक्स्ट बात करता है कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट, और टू लेवाई एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेक्युलर common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district. नेक्स्ट बात करता है कि 11th, every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll, or to conduct an election or part of an election. 12th बात करता है कि every person in the service or pay of the government or remunerated by the fees or commission for the performance of any public duty by the government and in the service or pay of a local authority, a corporation established by or under a central, provincial or state act or government company as defined in section 617 of the Companies Act. Illustration: a municipal corporation is a public servant.
यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वह पब्लिक सर्वेंट होता है, नगर पालिका का आयुक्त लोक सेवक होता है। एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है कि अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द एबव डिस्क्रिप्शन और पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट, अर्थात ऐसे जिन अधिकारियों का वर्णन किया गया है वह लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या न किए गए हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बात करता है कि वेयर एवर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट अकर they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be, and has right to hold that situation। अर्थात जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आए हैं तो वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हैं, चाहे उस ओहदे को धारण करके उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि क्यों न हो। वहीं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बात करता है कि द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग अ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ वॉट एवर कैरेक्टर द मेथड ऑफ सेलेक्शन टू विच इज बाय और अंडर एनी लॉ प्रेस्क्राइब्ड एज बाय इलेक्शन। अर्थात निर्वाचन या इलेक्शन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारियों के नाते, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के ऐसे वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है जिसके लिए वर्ण या चुनाव इलेक्शन करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई है। अब हम लोग सेक्शन 22 देख लेते हैं जो बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की, अर्थात जंगम संपत्ति की। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी और इंटेंडेड टू इंक्लूड अ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। अर्थात मूवेबल प्रॉपर्टी 22 में बताई गई है सेक्शन 22 में। तो मूवेबल प्रॉपर्टी शब्दों से यह आशयित है कि इसके अंतर्गत हर चीज़, हर ऐसी भांत की मूर्त संपत्ति यानी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी आती है, किंतु इसमें भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी ऐसी चीज़ से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, इनके अंतर्गत यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती है। सेक्शन 23 हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की। Wrongful gain is a gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। अर्थात wrongful gain सदोष अभिलाभ, wrongful gain विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। और wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। अर्थात सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति होता है। गेनिंग wrongfully, losing wrongfully समझ लेते हैं हम लोग। A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property। अर्थात कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है या तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है, और तब जबकि वह सदोष अर्जन करता है। और कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है या तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब जबकि उसे किसी ऐसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। हम लोग अब सेक्शन 24 देख लेते हैं जो बात करता है डिसऑनेस्टली की, अर्थात बेईमानी से।
whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। अर्थात सेक्शन 24 में बताया गया है कि डिसऑनेस्टली क्या होता है। तो जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे, तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। वही सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली की बात करता है। फ्रॉडलेंटली अर्थात कपटपूर्वक की। तो अ पर्सन इज सैड टू डू अ थिंग फ्रॉडलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। यानी कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह इस बात को कपट करने के आशय से करता है, तो यह कपटपूर्वक सेक्शन 25 में जाता है। अब हम लोग सेक्शन 26 देख लेते हैं, जो बात करता है रीजन टू बिलीव, यानी कि विश्वास करने का कारण। तो अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अर्थात सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। तो कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। सेक्शन 27 हम लोग समझ लेते हैं, जो बात करता है प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अर्थात पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। तो when a property is in possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is that person's possession within the meaning of this code। अर्थात जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है, यह समझा जाएगा। एक्सप्लेनेशन है कि अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररी और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट इज ए क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि स्पष्टीकरण कहता है कि लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक होता है। ये सेक्शन 27 बात करता है। अब हम लोग सेक्शन 28 देख लेते हैं, जो बात करता है काउंटरफीट की। तो अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयरबाय बी प्रैक्टिस्ड। अर्थात काउंटरफीट दस्तावेज कूटकरण, जो काउंटरफीट है, सबसे पहले हम लोग सेक्शन 28 समझते हैं। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वारा यानी कि उस कार्य के द्वारा प्रवंचना की जाएगी, तो वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बात करता है कि it is not essential to counterfeiting that the limitation should be exact, or the imitation, it is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact। यानी कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल एकदम ठीक वैसी ही हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बात करता है कि when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। यानी कि स्पष्टीकरण 2 बात करता है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक चीज को दूसरी चीज के सदृश करते हैं, और ऐसा सदृश्यता जो है वह द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है इस सदृश्यता के कारण, तो तब तक
जब तक कि वह प्रतिकूल साबित न कर दे, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय उस सदृश प्रवंचना करने का था, या यह संभाव्य जानता था कि ऐसे कार्य के द्वारा प्रवंचना की जाएगी। सेक्शन 29 हम लोग समझ लेते हैं, जो बात करता है डॉक्यूमेंट की अर्थात दस्तावेज की। द वर्ड डॉक्यूमेंट denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। यानी कि सेक्शन 29 कहता है दस्तावेज के बारे में। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बात करता है कि इट इज इमैटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सबस्टेंस द लेटर, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड, or whether the evidence is intended for or may be used in a court of justice or not। यानी कि यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या इसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं, यह सब इमैटेरियल होगा। अब हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं डॉक्यूमेंट की। A writing expressing the terms of a contract which may be used as evidence of the contract is document। अर्थात किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में किया जा सके, दस्तावेज है। A check upon a banker is a document। A power of attorney is a document। A map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence is a document। A writing containing direction or instruction is document। वही एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बात करता है कि whatever is expressed by means of letters, figures or marks as explained by the mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। अर्थात स्पष्टीकरण 2 बात करता है कि अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कोई भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, तो वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त न किया गया हो। इलस्ट्रेशन है कि A writes his name on the back of bill of exchange payable to his order। The meaning of the endorsement as explained by mercantile uses is that the bill is to be paid to the holder, and the endorsement is a document and must be construed in the same manner as if the words paid to the holder or words to that effect had been written over the signature। अर्थात को एक विनिमय पत्र की पीठ पर उसके एंडोर्स पे जो उसके आदेश के अनुसार देय है अपना नाम लिख देता है, तो वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस एंडोर्समेंट का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। तो पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो, शब्द या तत्प्रभाव ऐसे शब्द लिख दिए गए हैं। सेक्शन 29A देख लेते हैं हम लोग, जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। तो द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड shall have the same meaning assigned to them in a clause T of subsection 1 of section 2 of Information Technology Act 2000। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से जो 29A बात करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो IT एक्ट 2000 की धारा 2 उपधारा 1 के क्लॉज
टी में दिया गया है। ये सेक्शन 29A बात करता है। अब हम लोग 30 देख लेते हैं। सेक्शन 30 बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति की। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। अर्थात सेक्शन 30 इंडियन पेनल कोड का मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करता है। तो मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के द्योतक हैं जो ऐसे दस्तावेज हैं या ऐसे दस्तावेज होने तात्पर्य हैं जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत या अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अविस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। इलस्ट्रेशन हम लोग देख लें कि ए राइट्स हिज नेम on the back of a bill of exchange. As the effect of this endorsement is to transfer the rights to the bill to any person who may become the unlawful holder of it, the endorsement is a valuable security। अर्थात क एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर ऐसे अधिकार का अंतरित किया जाना, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है, यह वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो आगे की आईपीसी के बैरेक लेक्चर सीरीज में हम लोग 31 से आगे देखते हैं। तो बने रहिए हमारे इंडियन पेनल कोड 1860 के बैरेक लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।